Hello, my dear student of Standard 8. Welcome to you. And today we are going to start environmental pollution, and this is part 2 of chapter number 2. So, before that, I would have something to you share with you, and that is you can't enjoy wealth if you are not in good health. So, simple things are given that if you want to enjoy your money, if you want to enjoy your life, then your health should be at in good condition. If you have crores of rupees but if you have many diseases, then you can't enjoy that money. Okay, so do yoga. If you want to do healthy sattvic food, you can eat, you can do gym, you can at least one should walk 2 kilometer a day. Okay, and try to consume less food, because before 100 years we used to do lots of hard work, so we require to eat it thrice a day. But now, as we know that our body is not doing that much of hard work, so 2 times of food be sufficient, and try to avoid food after the sunset. And the excess food which is stored in our body is actually creating the health issues only. Okay, and there are many such reasons for the health issues. So after watching this picture, their friends might are crying over there. You can hear. Okay, environmental pollution, chapter number 2. So let's begin. Uh, Development is a right of human being. It means whenever and whatever field there is an opportunity of development, human have to right to progress. The industrial revolution and the scientific discovery have opened up a vast opportunity for technological advancement and development. These development have led a massive change in the human life. Technological advancement and have empowered the creativity, which in turn simplify the process of production. Electricity, railway, telephone, vehicles, industries, electronics, media are the important characters in the story of the development. So friends, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इट्स अ बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू गेट डेवलप्ड. सबको डेवलपमेंट का राइट है, बट मीन वाइल वी शुड ऑल्सो टेक केयर दैट on the cost of that particular development, environment won't suffer. Okay, and apart from it, industrial revolution and scientific discovery have opened the floodgate for the development and technology, no, technological advancement also. But friends, इसके कारण ना हमको एक कीमत चुकानी पड़ी है. ओके, एंड दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट. एंड हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी आजकल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं. रेलवेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. टेलीफोन लाइंस, व्हीकल्स तो पूछो ही मत, आर वेरी ह्यूज इन नंबर. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सब चीज़ें अपने आप में बताने में सफिशेंट है कि हाउ मच वी एक्चुअली वी हैड डेवलप्ड. नाउ यू जस्ट एनालिसिस द पिक्चर. ओके, इफ यू जस्ट एनालिसिस द पिक्चर ना, देन यू विल फाइंड देयर इज अ फैक्ट्री ओवर हेयर. ओके, यहाँ पर एक आई एम सॉरी फॉर दैट, you will find one factory over there. Okay, you will find some of the tree are in cutting condition. Now जब ये ट्री काटे गए तो इस पे जो इन ट्रीज जो बर्ड्स का नेस्ट था, अब वो ज़मीन पे आ गया है. एंड सी दे आर हैविंग टीयर्स इन देयर आइज. एंड पता है इनके मन में क्या आ रहा है? वेयर विल वी गो? अब हम कहाँ जाएंगे? सो दिस पिक्चर इज सफिशेंट. अगर किसी का हार्ट प्योर है तो इस पिक्चर को देख के वो समझ जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं. हम लोग जंगल काट रहे हैं, एनिमल से उनका घर छीन रहे हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, एंड हम लोग इसके लिए इंडस्ट्री बना रहे हैं. ओके, सो 2.1 इट इज़ रिटन ओवर हियर, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द लिविंग क्रीचर्स. आई होप आपको ये पिक्चर की जो इमोशनल पार्ट है वो समझ में आ गया होगा. नाउ द अल्टीमेट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम द कॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन. तो हम लोग नेचर में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, अब जो इंडस्ट्री में जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूटी होगी ना, एंड नेचुरल वेजिटेशन, तो ये सब चीज़ों की हमने ऐसी तैसी करके रखी है एंड पॉल्यूशन बहुत फैला के रखा है.
It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development is different context since two phenomena parallel इन द मॉडर्न टाइम्स. एक तरफ तो हम लोग डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, पर एक तरफ हम लोग बहुत सारा पोल्यूशन भी देख रहे हैं. इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सिंस दिस टू फिनोमिना रन पैरेलल इन द मॉडर्न टाइम्स. In the present time, land, water and air and the noise and the space pollution has increased and its adverse effect could be seen on the human life and on our environment. So ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन ज़मीन पे हो रहा है, पानी पे हो रहा है, एयर में हो रहा है. इवन नॉइज़ पोल्यूशन भी आजकल बहुत बढ़ गया है. ओके, राइट नाउ आई मीन सच इन प्लेस जहाँ पे पोल्यूशन बहुत नॉइज़ पोल्यूशन मिनिमम होता है. फॉर द शूटिंग द दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ यू रिक्वायर अ प्लेस वेयर आपकी आवाज़ अच्छी से कैमरा माइक अच्छे से रिकॉर्ड कर सके. ओके, एंड मैं अगर कोई हाईवे के बीच में हाईवे के अगर बेंच पे बैठ के अगर ये वीडियो बनाऊंगा तो यू विल आप मेरी आवाज़ शायद क्लियरली नहीं सुन पाओगे. द रीज़न इज़ वेरी क्वाइट सिंपल, इट इज़ वेरी क्राउडेड प्लेस एंड नॉइज़ तो वहाँ पे होगी. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम इट आजकल स्पेस पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है. तो स्पेस पोल्यूशन के कारण अगर हम लोग आ रहे हो, कोई नट बोल्ट हमसे टकराया तो यू कैन फील. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. With the industry coming up on the large scale, various kinds of pollutants affecting the environment have increased. So इंडस्ट्री के कारण भी बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन अब स्प्रेड होते जा रहा है. Among its all, air and land pollution are its main types. So air pollution and land pollution भी अब ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगा है. These are the three most important element of the sustainability of the life on the earth. So first talking about the water pollution, but before that I would like that you should watch these pictures. Just a minute. If you carefully observe this picture, मैं इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ. ओके, डन. सो जो मैंने रेड कलर का जो मैंने मार्कर से जो एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते इसको, बट इसमें आप देखो कि एक नदी है एंड उसमें से एक पाइप से पूरे शहर की गंदगी उस नदी में जा रही है. अब इससे रिवर का पानी क्या होगा? ऑफकोर्स पॉल्यूट ही होगा. एंड ऑफकोर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल कुछ लोग मंदिरों में कुछ जो मंदिर का वेस्ट होता है वो इस तरह से मतलब सीधा नदियों में फेंक देते हैं. इससे क्या होगा? रिवर पॉल्यूट ही होगा, वाटर पॉल्यूट होगा. ठीक है, वो तो ठीक है. इस बार ड्यू टू कोरोना गणपति का स्मॉल स्केल पे हुआ है एंड अब लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं. सो आई थिंक कोरोना ने हमको कुछ कुछ चीज़ें अच्छी सिखाई है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग सारी रिवर क्लीन हो गई थी, बट अगेन अनलॉक हुआ एंड सब कुछ थिंग्स जो पहले थी वैसी की वैसी हो गई. नाउ आई थिंक मुझे थोड़ा जूम कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर बेटर व्यू. इंडस्ट्री रिक्वायर वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाटर बिकम इम्प्योर पोल्यूटेड विच इज ड्रेन इनटू रिवर, स्ट्रीम और ऑन द ग्राउंड. इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे प्रोसेस में क्या होता है कि पानी की ज़रूरत होती है. एंड जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जब पानी उस प्रोसेस से गुजरता है तो वो पानी इम्प्योर हो जाता है, ख़राब हो जाता है एंड कई बार तो उसमें से स्मेल भी आती है. एंड यू कैन सी ये पाइप में से जो पानी गिर रहा है वो कोई ठंडा मतलब कोला तो होगा नहीं. ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये रिवर्स को पॉल्यूट करती हैं, या फिर कोई तालाब में अगर ये छोड़ा जाए तो लेक के वाटर को भी पॉल्यूट कर देगी. दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पॉल्यूट द प्योर वाटर ऑफ रिवर. तो जो केमिकल से भरा हुआ पानी है ये क्या करता है एक्चुअल में रिवर्स के पानी को पॉल्यूट कर देता है. सेकेंडली, द वाटर ड्रेनेज ऑन द ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली प्रेकोलेट्स डाउन एंड पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर टू. जस्ट इमेजिन ये पानी मतलब ज़मीन के ऊपर है, फिर ज़मीन की एक कैपेसिटी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और यही पानी जब एब्जॉर्ब होकर नीचे जाएगा तो जो नीचे ग्राउंड वाटर में जो प्योर पानी है ये उसको भी पॉल्यूट कर ही देगा. ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज अनदर रीजन बिहाइंड द वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन. तो हम लोग अर्बनाइजेशन को क्यों रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं? वेल, रीज़न इज सिंपल. अर्बनाइजेशन मतलब शहरों में लोगों की संख्या बढ़ना. से फॉर एग्जांपल एक गांव से 10 पीपल की एक फैमिली शहर में रहने आई, तो अब उनके रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ेगी. अब वो लोग घर रहेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, टोरेंट पावर को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी. अब ये 10 लोग हैं, इनको पीने के लिए पानी चाहिए तो इनको वाटर सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को. एंड ये लोग फिर कचरा भी स्प्रेड करेंगे तो गार्बेज कलेक्शन वालों को इनके पास से अब और कचरा कलेक्ट करना पड़ेगा. सो यू कैन थिंक कि कितना पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन.
Dirty water from the gutters in the urban area is released into the river and ponds which add the problem of the water pollution. तो ये शहरों में जितना भी कचरा होता है ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारी रिवर्स को पॉल्यूट करता ही है, एंड इवन पॉन्ड्स को भी. टुडे इवन द रेन वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो रेन का पानी भी जो नदी बरसात से जो पानी आता है वो भी इंडस्ट्रीज की वजह से ख़राब हो रहा है. द स्मोक एंड द गैसेज रिलीज इन द इंडस्ट्रियल मिक्स विद द रेन वाटर एंड पॉल्यूटेड. तो जो स्मोक रिलीज होता है तो स्मोक की जो राख गिरती है वो भी कहीं ना कहीं जाके हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रही है. नाउ द डर्टी वाटर रिलीज बाय द इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री इनटू द रिवर स्ट्रीम पॉन्ड डिस्ट्रॉय द एक्वाटिक लाइफ. अब जब ये इस तरह का कचरा जब पानी में फेंका जाता है तो उस रिवर के अंदर या उस पॉन्ड के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स द एनिमल विच आर स्टेइंग इनसाइड द वाटर, जैसे आपकी फिशेज हो गई, फ्रॉग हो गए, ठीक है. एंड ये सब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इनको मतलब अब ये लोग ब्रीथ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पानी अब इतना साफ नहीं रहा एंड ये लोग भी, इन लोग की जान भी डेंजर में आ गई है. आपको जो कहीं मूवी कर जाएंगे ऐसे पानी में कौन रहना चाहेगा. आपको मैं बोलूँगा इस पानी में नहाओ तो आप लोग नहीं नहाओगे, ठीक है. तो वो लोग क्यों रहेंगे ऐसे पानी में. मैनी टाइम्स वी सी अ न्यूज़ अबाउट मास डेथ ऑफ द फिश एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पॉल्यूशन इन द वाटर. सो ड्यू टू सच काइंड ऑफ पॉल्यूशन बहुत सारी फिशेस की डेड बॉडीज हमको देखने मिली है. अगर आप लोग एनवायरमेंटल न्यूज़ देखते हो तो, वरना न्यूज़ चैनल वालों को तो रिया चक्रवर्ती के पीछे ही पड़े रहते हैं और कोई फुर्सत है ही नहीं उनको. नाउ द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल. कई बार क्या होता है, देर आर सर्टेन कंटेनर्स जो बहुत सारा ऑयल लेके जाते हैं एंड कभी भी उनमें लीकेज हो जाए या मतलब शिप डूब जाए तो सारा पानी समुद्र के ऊपर फ्लोट करता है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स को डेंजर है. आई थिंक मैं अभी यहाँ पर हूँ, सो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना. ये जो वाटर है हम लोग अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. वाटर पॉल्यूशन कॉजेज द वेरियस डिजीज लाइक द कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा. कभी भी अगर हम लोग ख़राब पानी कंज्यूम करते हैं या ख़राब पानी पीते हैं तो उससे हमको ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होने का खतरा है, जिसमें कोलेरा आ गया, जॉन्डिस आ गया, वॉमिटिंग आ गया एंड लूज मोशन, ठीक है. यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली वॉशरूम में बार बार जाना पड़ता है. That is why nowadays people used to carry their own water bottles in the field with a fresh and a filtered water with them while traveling to office or to school. So आजकल तो एक नया फैशन चला है कि हम सब लोग क्या करते हैं, अपने साथ अपनी एक बोतल कैरी करते हैं. बिकॉज वी डोंट नो कि वहाँ पे पानी कैसा होगा, साफ़ होगा, फिल्टर होगा या नहीं होगा, वो लोग ठीक से मतलब हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं. सो बेटर है कि हम लोग अपनी बोतल ही कैरी करें. ओके. Many rivers are turned into gutters. Now this is perfectly true. क्योंकि ये नदियाँ क्या हो गई, एक तरह से अब गटर नाला ही बन गई एक तरह से. And this polluted rivers water is used in for agriculture and consequently pollutants enter in the food grain, vegetables and fodder. अब यही जो गंदा पानी है ना यही हम लोग खेती के लिए भेजते हैं. एंड एग्रीकल्चर का ये पानी है जब हमारी फसलों में आता है तो हमारी फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को भी पॉल्यूट करता है. यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर एक नॉट दैट कि यहाँ पे ख़राब पानी के कारण बहुत सारी फिशेस की डेथ हो रही है. आई डोंट नो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी. अब आप लोग बोलेंगे सर फिश की डेथ से क्या होता है. वेल ये फिश मॉस्किटो को कंट्रोल में करती है. मॉस्किटो मीन्स जो जिससे मलेरिया फैलता है, वो अपने जब अंडे छोड़ते हैं ना तो ये सारी फिश उन अंडों को खा जाती है. अब जब ये फिश ही नहीं बचेगी तो उनके अंडों को खाएगा कौन. So I think we need to be more cautious about it. People of every classes of the society, be political and farmer, industrialist, educated individual, art and worker, have very casual attitude toward the environment pollution. हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति इतना ध्यान रखते नहीं है. हम लोग बस ऐसे इसको इग्नोर करते हैं, अरे एनवायरनमेंट का वो तो सब चलता है, पर कब तक चलेगा. ओके. सो दिस एटीट्यूड वी स्टूडेंट है. हमको अब थोड़ा एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. द वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाइड बिफोर द ड्रेन इन टू द स्ट्रीम और रिवर्स. किसी भी पानी को अगर आप नदी में छोड़ रहे हो तो पहले उसका प्योरीफिकेशन होना जरूरी है. द वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाइड बिफोर द ड्रेन इन टू द स्ट्रीम और रिवर्स. गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी प्रॉपर टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज एंड वी शुड यूज द वाटर इन द जुडिशियस वे. पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाने पड़ेंगे, उस पॉलिसी से वर्कआउट भी करना पड़ेगा. एंड हमको भी पानी को बहुत समझ के यूज़ करना चाहिए.
ठीक है, आगे हम लोग ये बॉक्स पे आते हैं जो ये साइड है राइट साइड में। व्हाट कुड बी डन टू कंजर्व द वाटर इन स्कूल और विलेजेस। गाँव में और स्कूलों में हम लोग पानी को कैसे सेव कर सकते हैं विद उसको वेस्ट किए बिना। देर आर सर्टेन टैप्स जिसमें से पानी टिप 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 होता रहता है। ओके, वो आपको उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग अगर 1 आवर के बाद कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 2 लीटर पानी लॉस्ट हो चुका होगा। कैलकुलेट में 24 आवर्स होते हैं एंड कैलकुलेट देर आर 365 डेज इन अ ईयर। तो आप यू कैन इमेजिन कितना पानी हो सकता है। तो अगर आपका नल ठीक है, पुराना हो गया है, टप 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 कर रहा है, तो इट इज़ बेटर टू चेंज द टैप, या प्लम्बर को बुला के इसका सोल्यूशन निकाल दो। इसे पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। एंड एयर पोल्यूशन इज टूडेज वर्ल्ड इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, एंड हमारा कंट्री इस मामले में बिल्कुल ध्यान देता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। Just like a water, air pollution has become the major concern of the world. Industry have developed in every city and in most of the villages. The smoke and the gases emitted by the industry mix with the air and causes the air pollution. तो अगर हम लोग पानी की तरह देखें तो एयर पोल्यूशन भी आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन्स बन गया है। ज़्यादातर शहरों में यूजुअली इंडस्ट्रीज के कारण ये एयर पोल्यूशन होता है। और टुडे द यूज़ ऑफ द मिनरल ऑयल हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। हम लोग अपना जो व्हीकल चलाते हैं पेट्रोल के डीजल्स पे, तो इससे जो स्मोक रिलीज होता है इसके कारण भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। द व्हीकल रन ऑन द फॉसिल फ्यूल लाइक द पेट्रोल एंड डीजल एमिट द स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज लाइक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड विच मर्जेस विद द एयर एंड देयर प्रपोर्शन हैज़ इंक्रीज इन द एयर। तो ये सारी जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं ये जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं ये पॉल्यूट कर ही देती है। द प्रपोर्शन ऑफ द CO2 इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ द ट्री एंड विच हैज़ लीड टू इंटेंस प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ये जो ट्री होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये एक तरह से इसको कट कर रहे हैं, है ना। हमको ये इनको कट नहीं करना चाहिए एंड इसके वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन की अमाउंट बढ़ रही है एंड इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। Deforestation is another reason behind the increase of the air pollution. Dust particle float in the air are the depletion of the forest cover and trees. तो ये जितने भी पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन का कारण है। इसके अलावा जो डस्ट हवा में जो फैला रहता है ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। ओके, नाउ 2 more slide. एयर पोल्यूशन कॉजेज द वेरियस डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग इन्फेक्शन। अगर आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में नहीं रखते हो, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को अस्थमा होने की ज़रूरत है। अस्थमा में क्या होता है, आपको मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग लेने में आपको प्रॉब्लम होता है। एंड लंग इन्फेक्शन, तो लंग्स में इन्फेक्शन भी आ सकता है। डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू द डिजीज लाइक कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाती है, लाइक दैट कफ हो जाता है, आपको जुकाम हो जाता है, एलर्जी होती है कुछ लोगों को। नाउ देर आर बीन इंस्टेंट व्हेन द एनिमल डाइड ड्यू टू द सफोकेशन कॉज्ड बाय द एक्सेस पोल्यूशन। तो दम घुटने से भी लोगों की डेथ हो जाया करती है, स्पेशली एनिमल्स की। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज ड्यू टू द पोल्यूशन। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्यों रेज हुआ है, ड्यू टू पोल्यूशन ओनली। ओके, एट द टाइम दिस पॉइजनस गैसेस मिक्स विद द एड रेन ड्रॉप एंड कॉज द एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से एसिड बरसता है। ये जो एयर पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर एसिडिक टेंडेंसी होती है। जब ये बरसात के साथ पानी की बूंद में आते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का एसिड एलिमेंट वो वापस ज़मीन पे आ जाता है जो हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल है। तो उसको हम लोग एसिड एलिमेंट, एसिड रेन कहेंगे, जहाँ पे एक्चुअली में कोई एसिड नहीं बरसता, बट धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर को ख़त्म कर रहा है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड द वेजिटेशन। फ्रेंड्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, जहाँ पे ये व्हीकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्नल में रुके हुए हैं, लेकिन ये अपना इंजन बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे, पता नहीं, इनके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं। इवन आप लोग राइट साइड में नीचे देख सकते हो कि चिमनी में से बहुत सारा वाइट कलर का धुआं निकल रहा है। ओके, एंड आपके जो एरोप्लेन्स हैं फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ना, तो एरोप्लेन्स अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स पहले इन्वेंट हुए थे, बट आजकल उसका कॉमर्शियल यूज इतना बढ़ गया है कि वो सीधा जाके ऊपर ही पॉल्यूशन करते हैं। सो अगेन इट्स अ बिग डेंजर फॉर अस एंड फॉर आवर मैनकाइंड। ओके, टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स फॉर द इंडस्ट्री एंड इम्प्लीमेंट देम स्ट्रिक्टली। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली रखें और जो नहीं कर रहा है उसको या तो बंद कर दे या तो ख़त्म कर दें।
equipment that can be filter smoke and the harmful gases should be developed and installed. Industry do not follow the norms should be punished strictly and the heavy fines or should be shut down. तो एक स्टैंडर्ड सेट किए जाएँ, उनके लिए नॉर्म्स रखे जाएँ, तभी जाके ये सब चीज़ें रुक सकती हैं. एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज. इसके अलावा एनवायरमेंट से रिलेटेड कैंपेन होनी चाहिए. फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, बट सम हाउ गवर्नमेंट भी कब तक काम करेगी, हम लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा. ओके. एंड जो स्मोक रिलीज हो रहा है तो कम से कम हम लोग फिल्टर लगा के थोड़ा एयर क्वालिटी इंप्रूव तो कर सकते हैं ना. वन शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली मैनर. तो अगर मेरे घर के 1 किलोमीटर दूर मुझे कुछ सामान लेने जाना है तो आई कैन गो विद ऑन माई साइकिल. तो इसके लिए हमको व्हीकल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो हमको मतलब इस चीज़ों का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितनी ज़रूरत होती है. यूज pollution free fuel like CNG and LPG will help to great extent. इसलिए हमारी जितनी भी ऑटोस हैं उनको हमने CNG कर दिया है, बस उसको भी हम लोग CNG कर रहे हैं. टेस्ला की जो अभी नई कार्स आ रही हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं. सो इट इज़ गुड कि हम लोग अब समझ रहे हैं. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PUC और इन द व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंट एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट कंट्रोल होना चाहिए जो मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा. डज एनी ऑफ योर एक्टिविटी कंट्रीब्यूट द स्प्रेडिंग ऑफ एयर पोल्यूशन. वेल, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए या फिर इसको रोक देना चाहिए. वंस अगेन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वरना चाहे कितना ही पैसा हो कोई काम का नहीं है अगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. आपकी जेब में 1000 रुपये पड़े पर डॉक्टर ने बोला है आप बाहर का कुछ नहीं खाओगे और मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का. क्या कर सकते हैं. ओके. सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर पार्ट 1 एंड you guys are amazing. Keep learning, keep watching, and till then, bye everyone.